மாவா இருக்கு தொட்டுலாம் உண்டானு இதான் மாவா இருக்கு அந்த அட்டை டப்பாவில் உள்ளதா மாவா என்ன நடக்கு அந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ள டிவி ஸ்டாண்டு ரொம்ப நாளாக தேடி டிவி மாட்டுறதுக்குள்ள இந்த டிவி அதுதான் தேடுனி எனக்கு அந்த அட்டை டப்பாக்குள்ள ருசியா இருக்கு ஜெப்பா دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خراب چون می روی چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من هفت آسمان را بردارم از هفت دریا بگذرم چون دلبران بنگری در جان سرگردان من در جان سرگردان من گل جامه در از دست تو ای چشم نرگس مست تو ای شاخه ها آبست تو ای باغ بی پایان من ای باغ بی پایان من یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من تا وا شود چشمان من از لطف تو چون جان شدم از خویشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خرامان من ای رونق بستان من ای رونق بستان من
جان جان بی تن مرو از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من هفت آسمان را بردارم از هفت دریا بگذارم چون دل برای Nowruz is a combination of the Persian words no, which means new, and ruz, meaning day. Nowruz is a day of the vernal equinox and marks the beginning of spring, which is the first day of the first month of the Persian calendar. Families gather together to celebrate it, no matter if this happens at 5 a.m. or the head of the family lives miles away. Nothing can stop this reunion of the Iranian families. Nothing. So, when did it all begin? Some say it goes back to 3,000 years ago. It's rooted in Zoroastrianism, which is an ancient Persian religion. There are a lot of interesting stories behind Nowruz. According to the folk tales, Amu Nowruz, also known as Baba Nowruz, appears annually at the beginning of spring, together with his companion Haji Firuz, to mark the beginning of spring. He is an old man with silver hair and a walking stick who puts on a felt hat, a pair of thin-soled gibeh, and linen trousers. Haji Firuz, a man with red clothes and blackened face, plays a tambourine and sings, dances, and people give him little gifts for gratitude. While Amu Nowruz brings children gifts and spreads joy and happiness everywhere. And there's a beautiful love story about him and Nana Sarma. Wanna hear it? Nana Sarma, or Grandma Frost, is Amu Nowruz's beloved one. She is a sweet old lady with hairs white as snow, but a heart full of love. She waits every year for the first day of spring, the only day she can see the love of her life. So she cleans the house, makes tea, brushes her hair, and makes herself pretty, wears her best dress and the little skirt called chalite. Then she waits and waits and waits. And then she waits a little more until she drifts off. Amu Nowruz comes and finds her sleeping so sweet that he cannot let himself wake her up. So he puts a spring flower on her hair, drinks the tea, and eats half of the fruit. Then he kisses her cheek and leaves. Nana Sarma wakes up and feels the warmth on her cheek. Then she sees the half of the fruit and the empty cup of tea. She finds out he is gone, and he makes her so upset, but she promises herself not to fall asleep next year. Did she ever make it? No one knows. So how do we get ready for Nowruz? People start getting ready for Nowruz about 3 weeks before the actual vernal equinox. Pretty much everyone goes into serious spring cleaning mode. Or their mother forces them, getting rid of all the dust and dirt that settled in over the past years so they can start fresh with the Mother Earth. This is called khune tekuni, or house shaking, and will literally mean it. Families also set aside a space for a haftzin, or a collection of items that symbolize different hopes for the new year. Sabze is a symbol of rebirth and renewal. Senje, a dried sweet fruit from the lotus tree which represents love. Sib, apples for beauty and health. Sir, garlic, for medicine and taking care of ourselves. Samanu, a sweet pudding for wealth and fertility. Serke, for the patience and the wisdom that comes with aging. Somah, a Persian spice made from crushed sour red berries,
for the sunrise of a new day. Some people also put a mirror to symbolize reflection, colored eggs for fertility, coins for prosperity, and a goldfish as a symbol of a new life. Whoa, it's almost here. Oh my god, I'm so excited. I know. Ooh, don't forget to make a wish. Salano Mubarak. साल का वो दिन जिसे एक क्रिसमस, साल का वो दिन जिसे एक समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म और उनकी वैल्यूज को याद करने के लिए मनाया जाता था, अब केवल एक मटीरियलिस्टिक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है, जो समाज के लिए और हमारे प्लैनेट के लिए भी एक अभिशाप बन चुका है। इस त्योहार में वैसे तो बहुत चमक धमक, उल्लास और खुशी का माहौल दिखाई देता है, लेकिन इसकी असली सच्चाई बहुत दुखद है। MLive के इस आर्टिकल को पढ़िए। वैसे तो ये क्रिसमस ट्रीज को रिसाइकिल करने का तरीका बता रहे हैं इन पाइन नीडल्स, यानी कि इसके पहले कि आपका कारपेट खराब हो जाए, अपने प्यारे से पेड़ को घर से एलिमिनेट कर लीजिए। इस प्रकार की भाषा क्रिसमस ट्रीज के बारे में इस कल्चर के कॉमन परसेप्शन को दर्शाती है कि इस कल्चर में नेचर का क्या महत्व है और मटेरियल का क्या महत्व है। इनके लिए नेचर भी एक कमोडिटी के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका इस्तेमाल किया और एक बार काम पूरा हो जाने पर इसे फेंक दिया। इस पूरी सिचुएशन की असली प्रॉब्लम को समझने के लिए क्रिसमस ट्रीज की जर्नी को समझना जरूरी है। सिर्फ यूएस में कम से कम 3.5 लाख एकड़ जमीन क्रिसमस ट्रीज उगाने में उपयोग होती है। इस पेड़ को मैच्योर होने में लगभग 12 साल लगते हैं और हर साल 20 मिलियन से ज्यादा पेड़ हार्वेस्ट करके बेचे जाते हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये मार्केट आगे भी बढ़ने ही वाली है। इन फार्म्स में क्रिसमस ट्रीज मोनोक्रॉप्स की तरह उगाए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े एरियाज में सिर्फ यही एक पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बीमारियों और इंसेक्ट्स के हमले के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। अब इससे बचने के लिए फार्मर्स हेवी पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इन पेस्टिसाइड्स का कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बर्थ डिफेक्ट जैसे कई बीमारियों से डायरेक्ट कनेक्शन है। 12 साल के बाद इन पेड़ों को हार्वेस्ट करके ट्रक से मार्केट में और फिर लोगों के घरों में पहुंचा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ये हेवीली पेस्टिसाइड रिडन पेड़ फार्मर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, वेयरहाउस अटेंडेंट्स, रिटेलर्स और फाइनली घर के बच्चों को टॉक्सिसिटी से एक्सपोज करते हैं। फिर क्रिसमस के अगले दिन होता है असली तांडव, जब सभी लोग इन पेड़ों को फेंकना शुरू करते हैं। या तो ये पेड़ लैंडफिल्स में डंप हो जाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्बन एमिशन होता है, और फिर लैंडफिल्स में पड़े पड़े हर एक पेड़ मीथेन गैस और लगभग 16 kg CO2 गैस एमिट करता है। लैंडफिल के अलावा इन पेड़ों को जला देने का भी प्रचलन है। जलाने पर हर पेड़ करीब 4 kg CO2 रिलीज करता है। अगर आप गूगल पर इकोलॉजिकल अलग-अलग आर्टिकल्स अपने बिजनेस के हिसाब से आर्टिफिशियल ट्रीज या नेचुरल ट्रीज को बेटर ऑप्शन बताएंगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लगभग 80 से 90% आर्टिफिशियल पेड़ भी चाइना से बनकर आते हैं। ये प्लास्टिक के पेड़ जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाने का अपना अलग कार्बन कॉस्ट तो है ही, साथ ही इनके लॉजिस्टिक्स का भी हेवी कार्बन फुटप्रिंट है, जो कि चाइना से पूरे यूरोप एंड अमेरिका में फ्लाइट्स, ट्रेन्स, रोड्स और समुद्र के रास्ते से पहुंचाया जाता है। एस्टिमेट्स के अनुसार हर एक आर्टिफिशियल ट्री के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लगभग 40 kg CO2 एमिट होता है, और इसे जस्टिफाई करने के लिए लगभग 10 साल तक हर पेड़ को यूज करना आवश्यक है। अगर बाई चांस 10 साल यूज कर भी लिया, फिर भी आखिर में ये प्लास्टिक लैंडफिल्स में ही जाएंगे, और इसमें से निकलता लैंडफिल लैशे अंडरग्राउंड वाटर और आसपास की रिवर स्ट्रीम्स को जहरीला बनाता रहेगा। असल में इन दोनों विकल्पों में कोई भी विकल्प ग्रीन नहीं है, दोनों ही इकोलॉजी के लिए हार्मफुल है। दोस्तों, एक तरफ जो पेड़ों और नेचर को पूछते हैं, इन दोनों विकल्पों में कोई भी विकल्प ग्रीन नहीं है, दोनों ही इकोलॉजी के लिए हार्मफुल है। दोस्तों, एक तरफ है पेगन रिलीजन्स जो पेड़ों और नेचर को पूछते हैं, और दूसरी तरफ है ये वेस्टर्न कल्चर जो पेगन्स को इलिटरेट बताकर सालों से उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते आए। वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पर ही अपना घर उजाड़ रहे हैं, ऐसा बना रही है, और वो है एक्स्ट्रावेगेंट कंज्यूमरिज्म या अत्यधिक उपभोक्तावाद। थैंक्स टू 40% सेल्स 4th क्वार्टर में ही होती है।
इनफैक्ट सर्वेस बताते हैं कि यूएस में लोग उधार लेकर गिफ्ट खरीदते हैं, भले ही आइटम्स बाद में यूज हो या ना हो। और ऐसा ही सिमिलर डेटा यूके में भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे दुखद तो ये है कि अगले ही दिन लाखों करोड़ों गिफ्ट के रैपिंग पेपर्स और बॉक्सेस पहुंच जाते हैं ट्रैश में, और फिर ये सारा ट्रैश पहुंचता है रिसाइकलिंग, लैंडफिल्स या सीधा हमारे ओशंस में। कुल मिलाकर एस्टिमेट्स बताते हैं कि सिर्फ यूएसए में क्रिसमस के 3 डे सेलिब्रेशन में हर अमेरिकन लगभग 650 केजी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, जो कि लगभग 3,500 किलोमीटर गैसोलीन पावर्ड कार ड्राइव करने के एमिशंस के बराबर है। आज क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया सफर कर रही है। ऐसे में भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स टारगेट से काफी पीछे है। आई होप कि जैसे जैसे भारत के कल्चर की और सोच की छाप दुनिया पर पे बढ़ती जा रही है, ये डेवलप्ड देश भी हमारी संस्कृति से कुछ सीख ले पाएंगे। अननेसेसरी सेलिब्रेशन से ऊपर उठकर खुद और अपने प्लैनेट दोनों के प्रिजर्वेशन में सहयोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करिए और हमारे